Hello learners, I hope all of you are doing very well. So welcome to Law Success. आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये टॉपिक जो है आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम हो, बिकॉज एविडेंस एक्ट इज इन ऑल स्टेट्स। तो जो आपके मेंस के रिगार्डिंग जितना मटेरियल आपको लिखना चाहिए, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, दो थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. So first of all, if you are new to the channel, subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Second is, for any queries, you can just WhatsApp on this number. You can subscribe for more videos. Further details you will get in the description. So privileged communications is dealt under which sections of Indian Evidence Act? That is dealt under your sections 122, 129. Now what is a privileged communication? एक privileged communication होता क्या है? So there are certain matters which a witness cannot either be compelled to disclose, or even if the witness is willing to disclose, he will not be permitted to do so. What is it? Privileged communication. अगर आपको इक्वेशन आ जाता है what is privileged communication, explain, ठीक है, अगर आपको 10 मार्क्स में आ गया तो आपने सारे सेक्शंस मेंशन करके आने हैं, पहले आपने ब्रीफ में देके आना है कि privileged communication होता क्या है, या फिर आपको सेपरेटली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन privileged communication between the spouses, फिर हम उसमें 122 सेक्शन लिखेंगे. So the questions can be asked anyhow. So what is the privileged communication is, there are certain matters, you can just note down also, which a witness cannot either be compelled to disclose, जो आप compel नहीं कर सकते witness को disclose करने के लिए, और even if the witness is willing to disclose, अगर witness willing है उसको disclose करने के लिए, तो भी उसको permit नहीं किया जा सकता to disclose that. He will not be permitted to do so. So such matters are known as privileged communication. Sections 120 to 129 of Indian Evidence Act deals with that. So section 122 deals with, that is communications during marriage, that is privileged communication between spouses. So section 122 prevents communication between a man and his wife from being disclosed. तो ये क्या कहते हैं? So this says, this prevents communication between a man and his wife from being disclosed. So person cannot be compelled to disclose any communication. The person cannot be compelled to disclose any communication between a man and his wife from being disclosed. इस पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोई भी कम्युनिकेशन को रिवील करे जो उसके बीच में, उसकी वाइफ के बीच में हुआ है ड्यूरिंग मैरिज. दिस कम्युनिकेशन शुड बी ड्यूरिंग मैरिज. If this communication is made before marriage or after the dissolution of marriage, then this is not protected, because the word that is used here is during marriage. So this says a person cannot be compelled to disclose any communication made to him or her during marriage by any person, चाहे वो किसी ने, ठीक है, during marriage by any person to whom he or she is or has been married. अगर वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज किया गया है, दैट कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. बट अगर वो कम्युनिकेशन शादी के टूटने के बाद किया गया है, फिर वो नहीं इसमें है. तो ध्यान से समझना, इफ दैट कम्युनिकेशन इज मेड ड्यूरिंग मैरिज देन दिस इज प्रोटेक्टेड शादी के खत्म होने के बाद भी. अगर कोई कम्युनिकेशन शादी के खत्म होने के बाद किया गया है, देन दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122. बट हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस where this communication can be revealed. What are those exceptions? First exception is acts apart from communication. कोई भी act apart from communication अगर है, that is not protected under your this section. There is a famous case law on this, that is Ram Bharose versus State of UP. इसमें एक्यूज की वाइफ ने स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ हिज हस्बैंड, सो दैट वाज मेड एडमिसिबल बिकॉज दैट वाज एन एक्ट दैट इज अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन. सेकेंड एक्सेप्शन इज वेवर ऑफ प्रिविलेज. दैट मीन्स कि अगर जो हस्बैंड या वाइफ है वो खुद ही कंसेंट दे दे,
If they themselves given consent, then that is not protected under this section. Third one is suits or criminal proceedings between two persons. अगर कोई सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, दोनों मैरिड पर्सन्स के बीच में, दैट इज एन एक्सेप्शन टू दिस. फोर्थ वन इज दैट आई टोल्ड यू कि अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ है बिफोर मैरिज, इफ एनी कम्युनिकेशन इज मेड बिफोर मैरिज और आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन या फिर डिसोल्यूशन के बाद, देन दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड. दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू दिस. तो एक्सेप्शंस कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट वन इज एक्स अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन. सेकेंड इज व्हाट? दैट इज वेवर ऑफ प्रिविलेज की पार्टीज कंसेंट दे दी. थर्ड वन इज सूट्स अगर मैरिड पर्सन के बीच में चल रहे. फोर्थ वन इज इफ एनी कम्युनिकेशन इज मेड बिफोर मैरिज और आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन. फिफ्थ वन इज प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पर्सन. दैट मीन्स कि अगर सपोज हस्बैंड ने वाइफ को लेटर लिखा एंड वो लेटर जो है थर्ड पार्टी के हैंड्स में फॉल कर गया, if that letter falls into the hands of the third party, then that is not protected here. So these are the exceptions regarding the where the privileged communication is not that is these are the exceptions to section 122. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाउसेस, यू विल राइट कि सेक्शन 122 जो है दिस प्रिवेंट्स कम्युनिकेशन बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड. Then you will explain this section. Okay. Then you will write the exceptions to this section. You can mention the case laws regarding this section, the important landmark judgments regarding this section. Just prepare that. There is one important landmark case regarding this. अगर आपको question आता है, then do make sure that you are writing this case law. That is MC Varghese versus TJ Ponan का case. नेक्स्ट इज अगर प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे हमें वैसे क्वेश्चन आता है, अगर सेपरेटली आता है मैरिज के बारे में फिर तो 122 मेंशन करेंगे. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक्सप्लेन, आपको 10 मार्क्स का गया तो फिर सारे सेक्शंस आप उसमें लिख के आओगे. देन योर नेक्स्ट सेक्शन इज एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो ये कहता है कि सेक्शन जो 123 है दिस प्रोटेक्ट्स द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एन अफेयर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड. So section 123 protects the unpublished state records from being disclosed. ये जो section है this is based on a famous maxim that is Salus Papuli est supreme lex. ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये इसके ऊपर बेस्ड है. What is the meaning of this? This means public welfare is the highest law. का मतलब क्या है? दैट मीन्स पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ. तो सेक्शन 123 जो है दिस प्रोटेक्ट्स द अनपब्लिश्ड स्टेट records from being disclosed and this is based on this maxim that is public welfare is the highest law. This says no one shall be permitted, किसी को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो एविडेंस दे सके किसी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा. बट हाँ देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड. अगर वो परमिशन दे देता है देन दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड. नेक्स्ट इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन. ये जो सेक्शन है दिस सेक्शन इज कन्फाइंड ओनली टू द पुलिस ऑफिस. सेक्शन 123 और 124 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नो वन वर्ड इज यूज्ड हियर, नो पब्लिक ऑफिसर वर्ड इज यूज्ड हियर. So this says this section is confined to public officers only. ये कहता है कि किसी भी नो पब्लिक ऑफिसर, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता if any regarding any communication that is made to him in his official confidence if that relates to the public interest will suffer by such disputes. Further is your section 125. Now जो section 125 है दिस इंक्लूड्स 3 persons, दैट इज किसी भी मजिस्ट्रेट को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी रेवेन्यू. नो मजिस्ट्रेट, नो पुलिस ऑफिसर, नो रेवेन्यू, इनको कंपेल नहीं किया जा सकता
shall be compelled to say कि when he got any information as to the commission of any, कि कब उसको information मिली regarding the commission of any, ठीक है. So no magistrate, no police officer can be compelled when he got any information and no revenue officer shall be compelled. तो ये जो section है, this section is intended to encourage people to give information about offences by protecting the source of information. Otherwise तो कोई भी no one would like to give the information. Further is like 122 पे आपको separate question आ सकता है privileged communication between spouses. Similarly professional communication पे भी आपको short note separately आ सकता है. So professional communication means confidential communication between a professional, that is a lawyer and his client, that is made to the lawyer in the course and purpose of his employment as such advisor. अगर आप ठीक है आप यू आर एन एडवोकेट, आपको कोई क्लाइंट हायर कर लेता है, देन यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट कम्युनिकेशन टू एनी पर्सन. तो दिस प्रोटेक्ट्स, ये कहता है द प्रिविलेज अटैचिंग टू कॉन्फिडेंशियल प्रोफेशनल डिस्क्लोजर्स इन इज कन्फाइंड टू द केस ऑफ लीगल एडवाइजर्स. ये लीगल एडवाइजर्स तक जो है दैट इज कन्फाइंड. तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन के, ये कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन रिवील नहीं किया जा सकता मेड टू हिम बाय एनी, किसी एडवोकेट को किया जाए, किसी बैरिस्टर को, अटॉर्नी को, ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, ठीक है, वो नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता. तो बट देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस टू दिस, इसकी भी एक्सेप्शंस है. ये कहता है कि ये कम्युनिकेशन डिस्क्लोज किया जा सकता है इफ दैट कम्युनिकेशन इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस. इसको लेके आप एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो कि ए ने अपने क्लाइंट के कहा, ए क्लाइंट है, उसने अपने अटॉर्नी को कहा कि आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ ए फॉर्ज्ड, जिसपे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सू करने के लिए. जो एक कम्युनिकेशन है, दिस इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ ए क्रिमिनल पर्पस, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ऐसा जो है दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड. Second is any effect observed by any barrister, pleader, attorney or vakil in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment. तो अगर किसी ने एडवोकेट को हायर कर लिया, आफ्टर हायरिंग द एडवोकेट, ठीक है, कोई अकाउंट्स बुक थी उसमें उसने कोई चेंजेस कर दिए, क्लाइंट ने कुछ कर दिया एंड दैट वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द एडवोकेट. अगर वो ऐसा कुछ करता है, कोई फ्रॉड कमिट करता है, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड है. तो वो जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं. फर्दर दिस सेज दैट ये जो प्रोटेक्शन है दिस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड. अगर लीगल है सब कुछ तो ये प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहेगी इवन चाहे एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशन जो है वो सीज कर जाए, इवन इफ द एम्प्लॉयमेंट हैज. So in this way you can explain your section 126. अगर another exception is कि अगर disclosure अगर express consent दे दे client, then that can be revealed, फिर उसको reveal किया जा सकता है. Further is कि जो section 126 की provisions हैं, this also applies to interpreters, clerks, servants of barristers, attorneys, pleaders and उस पे भी जो है apply करता है. सेक्शन 128 लेज डाउन, ये लेज डाउन करता है कि इफ द पार्टी मेकिंग द कम्युनिकेशन, अगर पार्टी जो कम्युनिकेशन कर रही है अंडर सेक्शन 126 अगर वो एविडेंस दे दे ऑफ द मैटर कवर्ड बाय द कम्युनिकेशन, दैट डज नॉट अमाउंट टू अ वेवर ऑफ प्रिविलेज. उसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्रिविलेज का वेवर कर दिया. इवन अगर पार्टी लॉयर को बुला ले एज अ विटनेस, इट विल नॉट अमाउंट टू ए कंसेंट टू डिस्क्लोजर. इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दिया डिस्क्लोज करने के. बट अगर वो क्वेश्चंस, बट इफ ही क्वेश्चंस आर लॉयर ऑन द वेरी मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन कर रहा है लॉयर को जो भी उनके कम्युनिकेशन उनके बीच में हो, दैट वुड मीन कि उसने जो है कंसेंट दे दिया. नेक्स्ट इज योर सेक्शन 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स. This says no one shall be compelled to disclose to the court.
किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट को कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness. जब तक वो खुद को एज ए विटनेस ना बुलाए, इन विच केस ही में बी कंपेल, जिसमें कि उसको कंपेल किया जा सकता है डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी कम्युनिकेशन जो कोर्ट को नेसेसरी लगती है टू बी नोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस विच ही हैज गिवन बट नो. तो किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी उसके बीच में या उसके क्लाइंट के बीच में हुई है, अनलेस जब तक वो खुद को एज ए विटनेस ना बुलाए एंड कोर्ट को लगे कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिवील. So in this way you can just make full-fledged answer on your privileged communication. Apart from this, learners, there is an important news for all of you, that is Unacademy has introduced Uttarakhand Judiciary Mains Linking Batch. So this is started from 5th of June. सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं. अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप जो है ये कोड यूज करके आपको ये ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा. दैट इज आपको ऑफर प्राइस 9,999 का है एंड जो है इस पे भी आपको ऑफ मिल जाएगा. तो ये बैच जो है आप काफी लेस प्राइस पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन जस्ट स्कैन दिस कोड. आप इस कोड को स्कैन करके अपार्ट फ्रॉम दिस इज महाराष्ट्र जुडिशरी क्रैश कोर्स प्रीलिम्स बैच. ये 3 महीने का बैच है. इसका जो ऑफर प्राइस है दैट इज ऑल्सो, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको ये सिर्फ 14,999 पे मिलेगा. इनफैक्ट इससे भी लेस पे मिल जाएगा. सो एनरोलमेंट्स ओपन है टिल 13th of June. इससे पहले कि एनरोलमेंट्स बंद हो, यू कैन जस्ट एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच. लर्नर्स, डोंट मिस दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र जुडिशरी. आपका सारा सिलेबस इतने कम प्राइस में जो है कवर हो रहा है and Unacademy का प्राइस इंक्रीज हो रहा है from 13th of June. So buy the subscription now to beat the price. Thank you so much, learners. I'm just ending the session here only.